Dear friends, as I have already discussed about the track events, and in my previous class, I told you all that athletics is divided into three parts: that is track events, field events, and other events. Track events we have already discussed. Now today we will discuss something about field events. Now, what is field event? Any idea? किसी बच्चे को? Today we will discuss about field events. कोई आइडिया है किसी बच्चे को बेटा? Any idea about field events? पहले आप लोगों ने स्पोर्ट्स किया हुआ है, आप लोगों को मालूम है? हैं? बताइए। Yes, sir. You were in class 7th. Means Yes, sir. 7th A. yes, it means when we are conducting intra-house competition, that time onwards you all are in class 5th. It means you have not attended any intra-house competition. That's why you people doesn't know about the field events. So first of all, I request you all to please think carefully and write it somewhere else so that it is easy for you all to learn each and everything. आप लोगों ने लॉन्ग जंप का नाम सुना है? You heard about the long jump, high jump? नहीं सुना है ना? ये देखिए कोविड-19 में कितनी चीजें अजीब हो गई कि हम बहुत सारी चीजों को हमें जानकारी ही नहीं कि हम कौन-कौन से सर परसों तो सर परसों जो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में. Yes, you are 100% correct. Yes, sir. Yes, that is called as field event. अब हम डिस्कस करते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में. We will discuss about नीरज चोपड़ा also and we will discuss about this event also. ठीक है? So first of all, regarding field event, as I have told you, the field event is divided into two parts. The first one is throwing event and the second one is jumping event. Second one is jumping event. So throwing event. आपने जैसा बताया कि अभी सर नजर आ रहा है आपको? सुन रहा है? आपने बताया कि सर नीरज चोपड़ा, तो नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में पार्टिसिपेट किया? सर एथलेटिक में जेवलिन थ्रो में. ओके, जेवलिन थ्रो. तो जेवलिन थ्रो किस में आता है? सर थ्रोइंग इवेंट में. Yes, sir, throwing event. Okay. So there are two. First one is Field event. Field event is divided into two parts. That is Throwing event and jumping event. these are the two. Throwing event and jumping event. So in throwing event also, it is divided into various parts. कौन-कौन से होते हैं बताइए, एक चीज को आइडिया हो कौन-कौन से होते हैं इसमें? सर थ्रोइंग में जेवलिन थ्रो, शॉट पुट एंड बॉल थ्रो. सर शॉट पुट. Very good. सर डिस्कस थ्रो. Okay. Others you can also reply. सर हैमर थ्रो. यस सर हैमर थ्रो. ये सब क्या मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ क्या ये सब आपसे पहले? यस सर. यस सर. थोड़ा बहुत डिस्कस कर. जेवलिन थ्रो, हैमर थ्रो, डिस्कस, शॉट पुट. अगेन थ्रो. इसका मतलब आप मुझे याद नहीं दिलाते हैं कि दिस टॉपिक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. अब इसके बाद मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा इन टॉपिक्स को. वी विल गो समथिंग न्यू. कुछ नया करने के आगे चलेंगे. ठीक है? क्या करना है तो कोई बात नहीं. डिस्कस. और दूसरा क्या बताया बच्चे ने? शॉट पुट. हैमर थ्रो बताया. थर्ड क्या है बताइए? हैमर थ्रो. शॉट पुट. फोर्थ वन इज जेवलिन थ्रो. सर जेवलिन थ्रो. और हमारा गोल्ड किसमें आया है अभी? किसमें आया है? सर जेवलिन थ्रो में. इसमें आया है या इसमें आया है? सर जेवलिन थ्रो में. गुड. जेवलिन थ्रो में गोल्ड आया है. वेरी गुड. नाउ
Rowing event is divided into 4 parts: discus, hammer, shot, and Sir, jumping. yeah, 87.45 something meter. Jumping event also divided into various parts. Jumping event is also divided into various parts. The first one is Long jump, long jump. Second one is high jump, और बताइए ट्रिपल जंप। एक और है, बताइए अनमोल। पोल वॉल्ट, VAULT, VAULT, पोल वॉल्ट। ठीक है, सर इसमें क्या होता है? बताऊंगा। ठीक है, बताऊंगा, वो ही बताऊंगा। पहले इतना समझ लीजिए आप। लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप एंड द फोर्थ वन इज पोल वॉल्ट। समझ में आ गया? ठीक है। नाउ आफ्टर फील्ड इवेंट, ये जो वन बाय वन all events I will discuss. As soon as we will cover the different topics, simultaneously we will go and cover each and every event in detail, but it should be later on. Okay, यहाँ पे बात हुई थी, first topic is track and field, already covered. Now field event, second one, and the third one is other events. इतना समझ आ गया आपको? ये चीज समझ आ गई बेटा? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है, अब हम ये फील्ड इवेंट का मिटाने जा रहा हूं, रब करने जा रहा हूं। नाउ वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट द अदर इवेंट्स। ठीक है, सो इन फील्ड इवेंट्स देयर आर टू, throwing and jumping. Throwing event is also divided into 4 parts and jumping event is also divided into 4 parts. All these 4 parts we will discuss in detail. We will discuss in detail later on in the next topic. So I am going to cover this. Now, today we will discuss something about this other event also. How many events comes under this particular topic? That is other events. In other events, there are 2 events. The first one is called as decathlon. Decathlon. Okay. Next one is called as heptathlon. Try to understand. We will not go in detail about these other events because in our school and in school level also we have to discuss only about track and field events, because these events schools are not able to conduct these events because of the lack of facilities in schools. Okay? Not in our school, most of the schools. But try to understand, and brief information about these 2 events I am going to give you. First one is decathlon is called. Decathlon means they have to conduct 10 events under this particular event. What are those 10 events? That I will tell you in the next step.
ठीक है. In heptathlon there are 7 events. There are 7 events. This decathlon is meant for men's category, and this event is meant for women's category. मतलब ये लड़कों के लिए और ये लड़कियों के लिए, boys or you can say men's. जब बड़े हो जाते हैं then they are called as men's. So for men's there are 10 events and for women's there are 7 events. 7 इवेंट कंडक्ट करेंगे ये गर्ल्स के लिए और 10 इवेंट कंडक्ट करेंगे बॉयज के लिए और यू कैन से फॉर मेंस. नाउ व्हाट आर दोस इवेंट्स? अब the question arises, sir, all 10 events or all 7 events is to be conducted in one day only? No. All those events is to be conducted in 2 days. 2 दिन के अंदर. ठीक है. Now, and in a sequence wise, एक सीक्वेंस है उसका. उस सीक्वेंस में पहला फर्स्ट डे, अब 2 दिन करना है तो उस 2 दिन में पहला इवेंट कौन सा करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी हमें मालूम होना चाहिए. ठीक है. तो फर्स्ट डे day 1 for decathlon and day 2 for decathlon. बताइए, एनी आइडिया? किसी को है कुछ आइडिया कि डेकेथलॉन में पहला इवेंट कब करेंगे, कौन सा करेंगे? कोई आइडिया हो किसी को कि कौन-कौन से इवेंट्स होते हैं डेकेथलॉन में? बताइए भाई, बोलिए, किसी को कुछ आइडिया हो तो? चिराग, नहीं मालूम? यस सर. चलिए, in day 1 there are 5 events. How many events? 5 events. The first event is 100 meter. First event for men's category will conduct 100 meter. Second one is will conduct 100 meter. long jump. Third, you will conduct short put. ये किसमें आ रहा है, याद है आपको? 100 किसमें होता है? ट्रैक इवेंट में. And this long jump and short put comes under field event, है ना? Then high jump, 100 meter, long jump and high jump. Okay? 4 कितने इवेंट हो गए? 1 2 3 4. Now fifth event, which one? Any idea? (400 meters). So all these 5 events is to be conducted in a single day. एक दिन में कंप्लीट करना है. वो हिट्स भी हो सकते हैं. मान लीजिए 20 एथलीट आ गए, मान लीजिए 20 बंदे आ गए, तो 20 लोगों को एक साथ दौड़ा नहीं सकते, है ना? देयर शुड बी वन हीट्स, मतलब उनको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, तो वो हीट्स होगा पहले दिन. इन द सेम वे लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट एंड हाई जंप आल्सो विल गो फॉर फर्स्ट राउंड, एंड इसमें हम फाइनल बंदे निकाल लेंगे. सेम डे 400 मीटर में आल्सो विल कंडक्ट हीट्स. हाँ बोलिए. वीडियोस ऑफ. बोलो बेटा, बोलिए. सर अब सही है. हाँ, डे 2 में भी 5 इवेंट करेंगे हम. ठीक है. कौन कौन से? अगेन 110 मीटर हर्डल,
पहला इवेंट। Then second one is discus throw. Third one is बताइए क्या होगा? बड़ा आप लोग कुछ भी बताते रहिए भैया। है? अभी मैंने जंपिंग इवेंट में कुछ इवेंट्स के नाम बताए थे, नहीं है यार? एक इवेंट बताया था पोल वॉल। सर इसमें ट्रिपल जंप नहीं होता? होगा तो आ जाएगा, नहीं होता वैसे। सर ट्रिपल जंप भी तो होता है इसमें। इसमें नहीं होता, बता डेकाथलॉन में नहीं। वो तो फिर जंपिंग इवेंट में हो जाएगा, फील्ड इवेंट वाले में। इवेंट का आएगा लेकिन डेकाथलॉन इवेंट के अंदर नहीं। वो ट्रिपल जंप फील्ड इवेंट में आएगा, ठीक है? वो फील्ड इवेंट में आता है। तो ये 5 इवेंट्स ओके सर। दूसरे दिन करेंगे, ये 5 इवेंट्स हम पहले दिन करते हैं। एंड ऑल दीस 10 इवेंट्स टू बी कंडक्टेड इन 2 days फॉर मेंस कैटेगरी। सर जेलेविन के लाइट वेट होता है क्या? जेवलिन सर जेलेविन लाइट वेट होता है? for men's category the weight of the javelin is 800 meter, sorry 800 meter, sorry 800 gram, 800 ग्राम, 800 ग्राम का होता है। और विमेंस सर इसलिए वो इतना दूर तक फेंक सकते हैं। हाँ फेंक सकते हैं इतना दूर, 800 ग्राम होता है, मतलब 1 किलो भी नहीं होता है पूरा। सर लेकिन सेम चीज गर्ल्स के लिए जो होता है वो 600 ग्राम का होता है, 600 ग्राम। तो देखने में लगता है कि इतना लंबा जेवलिन है ना? लेकिन उसका वजन जो है, वेट इज ओनली 800 ग्राम फॉर मेंस कैटेगरी। आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन। ठीक है? अब फॉर विमेंस कैटेगरी ओनली 600 ग्राम, 600 ग्राम। ठीक है बेटा? तो ऑल 10 इवेंट्स फॉर मेंस कैटेगरी इज already discussed. Now we talk about heptathlon also. Note down किया बेटा ये? Note down कर लिया? उधर note down कर लो या याद कर लो जो भी सही लगे आपको। सर आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन। ये तो हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट नहीं हो पाता। बोलो वैसे क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो जेवलिन थ्रो होता है उसमें जो भाले की जो नोक होती है वहां कोई जाके गड़े, वो चीज वो है कंपलसरी? यस, करना कंपलसरी नहीं है, उसका टिप का टच होना जरूरी है। समझे नहीं समझे? समझ गया सर। उसका टिप का लगना जरूरी है। ये टिप नहीं लगा तो इसका मतलब वो फाउल है। ये चीजें जो होती हैं कंप्लीट, ये जो डे लिखवाए हैं फॉर हेप्टाथलॉन। ठीक है बेटा? इन फर्स्ट डे there is we have to conduct 4 events. Second day we have to conduct 3 events. Total number of events is 7, and I have already discussed in heptathlon for women's category we have to conduct 7 events in 2 different days. First day we will conduct all these 4 events, that is 100 meter, high jump, short cut, 200 meter. The same way
Second day, long jump we have to discuss, then javelin, and then 800 meter. And in all events, whether it's a track event or field event, in all events we have to conduct this. We have to conduct in 2 days, and these are the track events and these are the field events. ये दोनों हमें अकॉर्डिंगली टू द AFI रूल्स के हिसाब से करना है, जिसमें हीट्स भी हो सकते हैं 100 मीटर में और फील्ड इवेंट में क्वालिफाइंग राउंड भी हो सकते हैं. समझ में आ गया बेटा? We can conduct qualifying round also and we can conduct heats also. It totally depends upon the availability of the participation. Availability of the participation. ठीक है बेटा? Okay. Now you can ask some questions. पूछिए. Any questions? सर हाँ बेटा. सर जेवलिन थ्रो का जो ट्रैक होता है वो हर जगह बनाना मुमकिन है? हर जगह तो बनाना मुमकिन है, जैसे वहाँ पे टेबल होता है ना, जैसे 800 जैसे 10 मीटर 20 मीटर 25 मीटर 30 मीटर. क्या नाम है इसका? किसका क्वेश्चन था? चिराग. यस सर. Hard luck because of COVID-19 we people have not participated in any inter-house competition in our school, and that's why you people doesn't have the practical knowledge of this all these events of track and field. यही रीजन है कि आपके ये क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं, लेकिन इट्स माय प्राइम ड्यूटी टू क्लैरिफाई ईच एंड एवरीथिंग. तो पहला जो आपने बोला कि सर इसकी जो मार्किंग होती है ट्रैक के अंदर ही होती है. यस, all the markings, whatever marking, whether it's a short put marking, whether it's discus marking, whether it's a javelin marking, whether it's a 110 meter hurdle marking, कोई भी events के which comes under athletic event, it to be marked with the track only. और ट्रैक का शायद मैंने इससे पहले मार्क करके बताया होगा हाउ टू ड्रॉ ट्रैक को कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या तरीका होता है. ये सब चीजें बहुत डिटेल में और इतना आसान नहीं कि मैं आपको 40 मिनट में ये सब धीरे धीरे समझा दूं. ये धीरे धीरे करके ये चीजें समझ में आएंगी आपको. एंड बिकॉज यू आर इन क्लास 7 तो आपको हो सकता है जल्दी समझ में ना भी आए. ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं. दैट्स व्हाई स्कूल इज ट्राइंग टू कवर ऑल दोस टॉपिक्स इन थ्रू थ्योरेटिकल नॉलेज. आपको देने की कोशिश कर रहे हैं. और नेक्स्ट टाइम में मुझे आप याद दिलाइएगा कि सर ट्रैक मार्क करना है. क्या याद दिलाएंगे आप? याद रहेगा आपको कि ट्रैक हमको मार्क करना है. हम आपको बोर्ड में ये दिखाएंगे कि हाउ टू मार्क द ट्रैक, कैसे मार्क करना है. ये चीज आपको आना चाहिए जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही बता पाऊंगा. तो इन सब चीजों का आप थोड़ा याद रखिएगा. कई बार क्योंकि मुझे कई क्लासेस लेनी पड़ती हैं और देयर इज नो स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो कई बार मैं उस चीज को याद नहीं रह पाता है. तो इट्स योर ड्यूटी आल्सो टू रिमाइंड मी कि सर आपको आज ट्रैक के बारे में बताना है. इसीलिए मैं एक क्लास पहले आपको बता देता हूँ कि बेटा आपको नेक्स्ट क्लास में क्या मुझे बताना है. ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट दोज हु आर अवेलेबल हियर टू प्लीज रिमाइंड मी फॉर